ठीक है. So formal good morning because we are now recording. So formal good morning. ऐसा भी 2 मिनट है morning में. So formal good morning. Okay. So we are continuing from where we were in the last class. Like I said, we are looking at a sequential process. So last class we looked at service gaps. Once we reduce the gaps के साथ हमारा next topic is customer expectations. And once we've reduced the gaps, we get customer satisfaction, which leads us to customer loyalty, which we have already discussed. So this is the point from where we are starting with our work. So I had some things which I had lined up on the screen. I don't know, for whatever reason this was not working. So what we'll do is I'll just write down the keywords and बाद में I'll share the slides. So I just want you guys to pay that little bit extra attention ताकि you can just follow on what I'm trying to do. So the questions that we begin with, so customer expectations is going to be divided into two parts. The first part is what are the questions, what we need to ask ourselves as service marketers or service providers of the future. So let's say I want to launch a food delivery service. So मेरे college में there we have an incubation center, and one of the projects that we are incubating currently is a startup where they are providing home cooked food. And one of the things that they're doing is that they are tying up with underprivileged women. So women who would be there at the lower levels, the tier 3, tier 4 customers. And they're tying up with them. They are getting an extra income by making home cooked food for people like say hostlers or people living in PGs where they want breakfast, lunch, dinner. 3 meals are delivered to them on a regular basis with the meal planning, procurement, ingredients, quality, all those things these startup kids are trying to solve. And I've had their food twice. They served 2 of our corporate events from our incubation center, and both times the food was pretty good quality. I've had it twice myself also, I can say that. So this is the scenario. So these are these kids who are launching a sort of a home cooked tiffin service. The first question that they would have thought is, what is the need for it? आपके पास स्विगी, आपके पास जोमेटो है, आपके पास बहुत सारे टिफिन वेंडर्स हैं. I don't know if you guys, if any of you stay in PGs or you are hostlers or something like that. There are many tiffin vendors. In my area, there's this thing called a Ganesh food tiffin service or something. He delivers 3 times a day in a dabba. Somebody comes and delivers food to you. But the point is that when we ask the question, what are we selling? Then comes the question, basically the question that comes is, what does the customer want? So let's take this example only. मेरे को भी थोड़ा सा last week उन्होंने explain किया था, so I just remember that story. So what does the customer want? So when there are already existing tiffin service providers, what is it that the customer is wanting? खाना उसको भी चाहिए, खाना सबको चाहिए. What is the want? That Ganesh Tiffin is also probably cooking in the home only. But there is a difference. Look at the name of the product. They've called it the Mom's Tiffin. Meaning that it is actually being cooked by somebody's mother. Not a professional cook or a chef who's just cooking the food en masse. It is basically, if you know a little bit, you've heard of this company, Lijjat Papad? Lijjat Papad, everybody's heard of, everybody's had their products. But have you realized that they are not made in the same factory or by the same employees? They are made by different suppliers, the women who are doing it as a cottage industry. And Lijjat is basically a very good example of what these kids are trying to do. Now in their case, what is the want? They figured out that the want is basically something or food cooked with a slightly home touch that a mother, a lady, can provide, which the other tiffin vendors are not providing. So they figured out the want. Okay. Now want के बाद है, want के साथ साथ इससे पहले था need तो remain same. They want tiffin delivered to them. वो need को हम नहीं कर रहे because it's very simple. So, but I've still written it need, wants. We go in sequence. After the want, then comes
Now, because these kids are selling home cooked food, can they charge a very high price premium? Why not? Why can't they charge a high price premium? Why not? Because though there is a need and a want, there is also a purchasing power issue. If I'm anyways wanting tiffin, I'm anyways looking for a more cost efficient solution. I can have other vendors, I can have Swiggy, I can have Haldirams, I can have Bikaner Wala, all those things giving thalis and all. But why do I want that? Because I want a sustainably priced solution. So at a price point, they also have to do the delivery, they also have to do the costing, they have to keep everything within a price that the customer is willing to pay and is able to afford to pay. If you remember, we've discussed this previously, desire, willingness to pay versus ability to pay. Ability to pay is how much I have with me right now, and the willingness is how am I willing to pay a price for that particular product. So if you remember, हम लोग पहले Apple का example ले रहे थे. We've got this device, we've got the people who are making that product, and we are like, why are we willing to pay that much for it? So in this case, again, if we stick back now, let me just load up the screen from here only, so that we are all in business. Yeah. So now you look at the questions. Okay, I don't know if this part is visible. I'll read it out for you if that is a challenge. Okay. So, when does he want the service? So there are these 5-6 questions. We call them there's this marketing term which I typically use, which is called the 5 W's. Who, what, when, where, why, how. These are the 6 questions you should ask any marketing product or service that you are going to figure out. Always ask these questions. So this is exactly what I've done. I've just tried to put them in sentences so that it makes more sense to you. Otherwise, I'm asking these standard 6 questions. Who is my customer? What am I selling? Who, what, when am I selling? Where, why am I selling it to it? There is a need. And how am I going to do it? So the service marketer should also be able to answer these questions, because once they've answered these questions, they will figure out what are the expectations of the customer, and then figuring it out with what service I'm offering, I get the service gap. If I can reduce this gap to a measurable or to a minimal quantity, I am boosting my customer's satisfaction. And if you are satisfied with the mom's tiffin, maybe you would give positive word of mouth. आप इंस्टा पे कोई पोस्ट डाल दोगे, आप फेसबुक पे डाल दोगे, आप उनकी वेबसाइट पे कमेंट लिख दोगे, which will give them word of mouth, which will go on further for the other customers as well. Services marketing में word of mouth is a very important thing, because like we said previously, a service is something which has to be experienced for it to make some sense. A pen hai. This remains same whether I use it here or I use it in the next room or I use it with you guys. But today, if you are in the right mood to consume this class, then it makes sense for you. अगर आपको घर से धक्का मार के भेजा गया, जाओ क्लास करके आओ, you'll be like, बोल लो सर, आप भी बोल लो, हम सुन लेंगे, 1:30 बजे तक तो सुनना है ना. And in your mind, some of you are in Goa, some of you would be in Shimla, and you'll be just sitting in class, right? Let's be honest, that's the way it is. So the point that I'm trying to make is, once I've looked at these questions, only then can I figure out the expectations, and then comes the consequences. So when I looked at what does the customer need, then I'm talking of willingness to pay. How close am I to the perceived service? So let's say I give this thing, it's the mom's tiffin, meaning home cooked food, right? So what is the characteristic of home cooked food? We all have home cooked food. What is the characteristic? It's a service your mother provides to you as her child, family, whatever. It is hygienic. It will not have too many spices. It will be well cooked. It will be well packed. It will have good quality ingredients. At that price point, of course, good quality ingredients. Those are your expectations. Now, if the mom's tiffin guys are able to meet all of these expectations, look at the question. How close am I to the perceived service?
कस्टमर है, उसके माइंड में ये सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स है 1 2 3 4 5. और से फॉर एग्जाम्पल यू कम टू अ क्लास, you've got certain expectations from a class. But if you've come to this class and मैं बोलूँ यार मेरा आज पढ़ाने का मन नहीं है, मैं सीट पे बैठा हूँ, मैं अपना नॉवल पढ़ रहा हूँ फ़ोन पे, ई बुक पे, और मैंने स्लाइड्स को ना ऑटो पे लगा दिया. Every 2 minutes the slide changes. Like पढ़ लो आप लोग अपने आप. Will that serve your expectation? You want me to stand here and talk. चाहे आप उसको सुनो ना सुनो, that's a separate story altogether. चाहे आपको समझ में आए, पसंद आए, that's a separate story. But the point is that there is an expectation of a service encounter. Service encounter is I come to a class, I want these things. And if I get them, then I'm good. If I don't get them, what do I get? Anger and annoyance. So you go to a shop and you're like, यार इतनी देर वेट करना पड़ेगा, भाड़ में जाए, मैं नहीं जा रहा. I am not going to wait. I am annoyed if so say for example you call up your phone ka, your mobile phone ka call center. How many times have you had to wait for more than 5 minutes for your call to be connected to a human operator? If that happens, don't you get annoyed? यार इतनी देर फोन पकड़ के बैठे हुए हैं, जवाब नहीं दे रहे, सुन नहीं रहे. Try doing that with मेरे केस में NDPL की हेल्पलाइन घंटा भर लगाते हैं, especially on Sunday evenings when their service support staff is less. At least 15-20 minutes you are there. So what you do? What do? They say ठीक है, you want to lodge a complaint, there's a WhatsApp number, आप उस पर complaint दे दो, हम register कर देंगे, and they do it. So what happens? जो मेरी annoyance है कि मुझे operator से बात करने में time लग रहा है, they're trying to solve that annoyance with a tech-based support. And by the end of the class today, we have a plan where we look at tech and services. How do these two entities interact with each other? So if my perceived service is not being met, I am having anger and annoyance. And you could have observed that when you were waiting for the whole tech issue to start off right now with the projector and laptop not working, how many of you like, yaar, shuru hi nahi ho rahi class? But you were okay with it to an extent because you also saw that I am also equally annoyed and it is nobody's fault. Tech is nobody's fault. So your annoyance get reduced. But when it comes to quality, so the mom's tiffin, for example, these guys say कि हम आपको quality खाना देंगे, and they don't deliver on quality. What does this anger and annoyance translate into? Are you going to be a long-term customer? No. Because then you will, once you are, so let's say you've taken a 1-month subscription and you prepaid, आप एक महीना तो झेल लोगे. But जैसे ही आपका month खत्म होगा, you would have already had provider number 2 ready to deliver the same tiffin service to you. क्योंकि आपकी need change नहीं हुई, आपकी want change नहीं हुई, आपकी willingness to pay change नहीं हुई. All that has changed is your service provider. And why has that service provider changed? क्योंकि that service provider did not meet the expectations of the customer. Now for the customer, अगर एक सर्विस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इट हैज सम इम्पैक्ट. सो लेट्स से आई गेट दिस फूड सर्विस. फूड आया, आज अच्छा नहीं था, मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैंने खाया, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा, मैंने खाना पैक कर दिया, मेरे को नहीं खाना ये. व्हाट इज माई शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस? मुझे भूख तो लग रही है. व्हाट विल आई डू? आई विल स्विगी समथिंग एल्स, विच मीन्स आई एम बेयरिंग अ कॉस्ट. मैं कितने दिन कर लूँगा ये? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन. उसके बाद आई बी लाइक यार ऑब्वियसली इट्स गेटिंग आउट ऑफ बजट. मैंने टिफिन सर्विस के लिए भी पैसे दे दिए, मैं स्विगी से भी पैसे दे रहा हूँ, आई विल एग्जिट. सो यू हैव टू लुक एट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस. मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंस तो हो गया, बट टिफिन सर्विस से कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है मुझे, कोई डैमेज है मुझे? नहीं. आज नहीं होगा, मैं कल सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर लूँगा, एंड ऑफ स्टोरी. बट व्हेन आई टेक अ सर्विस विच इज़ अ हाई लेवल सर्विस, से अ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, अगर वो सर्विस अच्छी नहीं हुई, I may have a long-term consequence, which means my level of dissatisfaction or my ability to give good feedback will decrease. क्योंकि वो मेरे को रोज चीज तंग कर रही है. If my doctor hasn't treated me efficiently, then I have a problem with that doctor, और वो problem काफी दिन रहेगी. अगर फूड सर्विस नहीं अच्छी, मैंने आज खाना खाया नहीं अच्छा लगा, I'll not visit that provider again. But if the doctor has given me a medicine which has caused a side effect,
वो साइड इफेक्ट मेरे साथ थोड़े दिन तो रहेगा ना, it can't disappear overnight. So depending on the level of service, customer expectations also change. I will take this up a few slides later as well क्योंकि ये थोड़ा सा important topic है, ठीक है? So just bear with me, we'll come back to this point of long-term consequences. Now let's look at the service expectations. What does the customer expect? Good restaurant I need. So let's say I call it that way. So what you do is you divide the expectations over a band. The band is, this is my ideal expectation. I want this. I want my service or my class or my hospital treatment or my food service to be this. This is my ideal. It ticks all the boxes. But in reality, we have a band. So this is my minimum expectation. I'll give you one example. Now, when you go to Domino's, you've all been to Domino's somewhere or the other. But is Domino's a place to go and sit and eat your pizza? है Domino's में जगह बैठने की होती है, but is it worth it? बहुत गंदी सी होती है, छोटे से प्लास्टिक चेयर्स हैं. अब आप मैकडोनल्ड्स जाओ और मैकडोनल्ड्स में यू एक्सपेक्ट पीस एंड क्वाइट. रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज मैकडोनल्ड्स हु इज द टारगेट ऑडियंस? किड्स एंड यंग अडल्ट्स. अब आप बच्चे को अगर आप मैकडोनल्ड्स में लेके गए और आप उसको बोलो कि वो चुप बैठा रहे, इज दैट गोइंग टू हैपन? At least not in my experience. My kid is super excited when he goes to McDonald's. He keeps running around the whole store making noises. That's acceptable. That is expected. So when I go to but do I go to McDonald's for cutlery and silverware कि मेरे को cutlery मिलेगी, plate मिलेगी, मैं style से काट के खाऊंगा, fork से, knife से? Am I going there for that? No. But why am I willing to accept all that bad sort of ambience, noise? Because I expect it to be self-service because of the price or because of the way the restaurant is structured. But when I go to a 5-star restaurant और वो मुझे बोले सर वहाँ ना आपकी प्लेट पड़ी है ले आओ जाके, will I do that? No, I will not. I will like, you serve it to me, I am paying you for it. Right? That is where the challenge lies. Right? Now, some are acceptable. अब आप बाहर जाओगे अभी, यू विल गो फॉर लंच आफ्टर द क्लास एंड्स, यू विल गो फॉर अ स्नैक और अ लंच और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. सम ऑफ यू मे गो टू द टिक्की सेलर आउटसाइड हु इज ऑन दिस, जो दीवार के बाहर खड़े हैं आपके बस स्टॉप वाली लाइन में. यू विल गो देयर, सम ऑफ यू मे गो देयर, मे बी नॉट, नथिंग, आई एम नथिंग अगेंस्ट दैट गाय. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट वंस यू गो देयर, आर यू एक्सपेक्टिंग हिम टू गिव यू कटलरी? पेपर प्लेट होएगी, नैपकिन होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भैया खाओ, वो रहा डस्टबिन वहाँ फेंक दो. Do you expect him to do that for you? No, because that is your minimal tolerable expectation. ठीक है, उसके ऊपर आएगा अगर आप मैकडोनल्ड्स गए हो. मैकडोनल्ड्स में many times, मतलब I have nothing against it, sometimes मैं भी नहीं करता. Do we take our tray and put it in the dustbin? Majority of the times we don't. पहले मैं करा करता था. Sometimes I used to do it. I used to make it a point कि चलो मैंने खाया, मैं अपने डस्टबिन में डाल के ट्रे ऊपर रख दूँ काउंटर के. But I'm like, when there is staff for it, कर लेगा यार, मैं बच्चे को संभालता हूँ और मैं जा रहा हूँ. दैट इज माई एक्सेप्टेबल एक्सपेक्टेशन. एंड अगर मैकडोनल्ड्स में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैकालू टिक्की लिया, वो आपको इमीडिएटली सर्व कर देते हैं. बट अगर आपने कोई थोड़ी सी चीज़ ली जो उनको कुक करनी है, या ऐसे महाराजा मैक आपने ऑर्डर किया, इट इज़ नॉट रेडी, 5 मिनट बाद देंगे. सो यू एक्सपेक्ट कि वो 5 मिनट बाद आपको आपकी टेबल पे एक ट्रे में रख के दे के जाएगा. दैट इज़ योर एक्सपेक्टेशन ना, मिनिमल है ना, इसमें तो मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहा. बट वुड यू एक्सपेक्ट कि अगर आप मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग गए और वहाँ से आवाज़ें लगा रहा है, ये बर्गर किसका है जी, ये मैक वेजी किसका है जी? जैसे मेरे कॉलेज की कैंटीन में होता है, मेरा जहाँ पे ऑफिस है उसके नीचे ही कैंटीन है. सो वो जब जैसे किसी ने ऑर्डर दिया तो वो भाई आता है, वो आवाज़ देता है, बिकॉज दैट इज एक्सेप्टेड इन अ कॉलेज कैंटीन बट नॉट इन अ रेस्टोरेंट. सोचो आप मैकडोनल्ड्स के वो आवाज़ें लगा रहे, ये पनीर, ये मैक वेजी किसका है, आ जाओ लेने. डजंट मेक सेंस ना. Obviously not. It doesn't make. So then what does Haldiram's do? Or what does Burger King do? They've got a code, they've got the bill number और ऊपर एक display board है. Stylishly कर रहे हैं वही चीज़ कि भाई now you're, so एक आता है order being prepared, ready for collection. So आप अपना जाओ, bill दिया, उन्होंने आपको order पकड़ाया, आप लेके आ गए. Perfectly acceptable. That is your acceptable expectation.
अब आप बर्गर किंग जाओगे, यू डोंट एक्सपेक्ट अ वेटर टू डू द सर्विस फॉर यू. You know it's a fast food restaurant, it is self-service only. You know it. Then sometimes you go to a restaurant, so say for example you go to a food court, किसी भी मॉल के फूड कोर्ट में गए संडे शाम को versus Wednesday शाम को. Is there a difference in the level of service? Is there a difference in the level of crowd? And does that have an impact on how soon will you get the service, will you get the food? It has an impact. अब मेरे घर के पास में आज एक चने भटूरे वाले हैं, संडे है, वहाँ पे देयर इज मोर लाइन देन साथ वाले मंदिर में. चने भटूरे ऑन संडे इन माई एरिया, इट टेक्स एटलीस्ट हाफ एन आवर टू गेट वन प्लेट आउट ऑफ इट. इतनी भीड़ है. और यही मैं कल गया दोपहर को 1:30 बजे, मी एंड वन मोर कस्टमर, दैट्स इट. टाइमिंग. सो अगर मैं रश टाइम में जा रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग ऑन अ संडे विद माई फैमिली, आई नो कि पार्किंग में चिक चिक होएगी. आई नो कि मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी गाड़ी की बाहर, मुझे बहुत चिक चिक करनी पड़ेगी उसके लिए. आई नो कि फूड कोर्ट में भीड़ होगी. सो इफ आई नो ऑल ऑफ दिस, बट मेरे पास अगर टाइम संडे शाम को ही है, सो व्हाट इज हैपनिंग? एक्सपीरियंस. आई नो कि होगा, चल यार देखी जाएगी. फिर देन आई विल नॉट कर्स बर्गर किंग फॉर गिविंग मी स्लो सर्विस. आई विल नॉट कर्स देम बिकॉज आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस की क्राउड होगा. आपको नहीं चाहिए क्राउड, आप वेडनेसडे शाम को जाओ, खाली होगा बिल्कुल. वेडनेसडे 4 बजे जाओ दोपहर को, वीक के बीचों बीच कोई नहीं होगा वहाँ पे, पूरा फूड कोर्ट खाली होगा. बिकॉज दैट इज द रियलिटी. सो इन दिस केस मैं कुछ नहीं कहूँगा. बट वेन आई गो टू ए गुड क्वालिटी रेस्टोरेंट, लेट्स से आई गो टू एन एक्सपेंसिव 5-star रेस्टोरेंट, Starbucks ले लो. अगर if you're sticking with that semi fast food theme, we can go with Starbucks. I'm paying $200 for a cup of coffee. Do I want plastic benches? Starbucks में कभी plastic benches दिखे आपको? ऐसी टेबल्स भी नहीं होंगी. It'll be proper seats. Why? वुडन फर्नीचर होगा, प्रॉपर सीट होगी, प्रॉपर वुडन फर्नीचर होगा. कोई वहाँ पे गाने नहीं चल रहे होंगे पीछे. It will be nice, quiet, the AC will be working, coffee की बड़ी अच्छी smell होगी, the staff will be very polite to you. Why? So that is exactly what you are paying for. They should give me a good quality cup of coffee, which is exactly what I am paying for. Right? So that's where the expectations become normal, because what is happening? Price के साथ expectation link हो रही है. And last में you've got this good 5-star restaurant. So आप let's say for example, I don't know if you had that experience. मेरे साथ एक बार ही हुआ था. We had gone to, कहाँ हुआ था ये? हाँ, this would be my honeymoon. Long time back. And I don't know if you guys, when अभी तो आप लोग, all of you are bachelors, I'm assuming, right? So when you get married, go for it, whatever. Point that I'm trying to make is, so I went to this hotel, so we booked the hotel and all, and they realized that I'm coming for my honeymoon. ठीक है, they realized that, and it was a good 5-star hotel. I expected certain services, so मुझे सारी मिली, but they gave me an additional benefit, which was, so when we entered our room, so उन्होंने क्या किया होता, they had a very nice, मेरे शायद photos भी होंगी उसकी, they had twisted towels into the shape of swans. वो स्टाइलिशली करके रूम सर्विस वालों ने बड़े स्टाइलिशली करा हुआ था. And they had put some rose petals just to give it that whole romantic sort of feel. From their side, they are trying it very well. Nothing wrong against them. And every day when room service came, हम 3 days रहे होंगे वहाँ पे. Every day they had different designs of animals which they left on the bed, just as a complimentary thing. That became my ideal expectation कि हाँ यार ये इन्होंने अच्छा किया मेरे साथ. एक जगह और we went, when we went to a hotel, they asked us, सर आप क्यों आ रहे हो? What is the purpose of your visit? Not because आप क्यों आ रहे हो, please आओ, हमें पैसे चाहिए. But they asked us, why are you coming? What is the purpose? So I said, my anniversary was like, ये होगा, आगरा था ना, हाँ. So my anniversary was next week, या अभी पिछले week हुई थी, मतलब within 1 week of my anniversary, we had gone, हमें holidays नहीं मिली, अलग बात है. So we went there. So they made sure कि रात को dinner से पहले, they served us a cake complimentary. कैंडल वैंडल लगा के, सो वी कुड सेलिब्रेट द सो कॉल्ड एनिवर्सरी दैट वी आर गोइंग फॉर. ऑब्वियसली तब तक 3-4 साल हो चुके, सो it's just another anniversary. But the point was that they were trying to make it a little bit special.
That is your ideal expectation. Meaning you are giving the customer, if he expects 100, आपने 100 दे दिया और आपने उसके ऊपर एक 1 और दे दिया, which means that 2015 से लेकर 8 साल, 8.5 साल हो गए उस एक्सपीरियंस को. July 2015 I had gone to Agra. It's 8.5 years now. I still have a positive remembrance for it. Are you getting the point? So वो 1% जो ने मुझे एक वो 200 रुपए का केक होगा उनके लिए. I paid $20,000 for a 3-night stay. 200 rupees is nothing for them. Peanuts भी नहीं कहूँगा मैं उसको. It's such a small amount. But that 200 rupee cake still gives them brand value 8 years later. Very cost efficient ना? That is service. मेरे को होटल नहीं याद, मेरे को रूम नहीं याद, मेरे को और कोई सर्विस नहीं याद. मुझे ये याद है कि उन्होंने मुझे केक दिया था. Are you getting my point? That is service expectation. Delighting the customer. There is one topic which we'll do after 3-4 slides, which is delighting the customer, and we'll look at what are the pros and cons of it. Okay? Now, service standards. So expectations are based on standards. So आज मेरे mind में एक standard है कि if I go to a 5-star hotel and I tell them that I'm coming for my anniversary, what is happening now? I have an expectation कि वो दूसरी कंपनी का 5-star होटल है, but वो still यही चीज़ करेगा. एंड अनफॉर्चुनेटली अभी हम जुलाई में गए, एनिवर्सरी टाइम पे गए, केक भी रेडी किया, हम भूल गए कि हमने केक उनको बोलना है कि कब देना है. सो दे हैड इट रेडी, दे हैड आस्क्ड मी फॉर इट एंड एवरीथिंग, सो दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट. सो आई डोंट ब्लेम देम अगर मुझे केक नहीं मिला. मैंने उनको याद नहीं लगा कि भाई मुझे केक देना है. उन्होंने कहा सर आप हमें बता देना किस दिन चाहिए, हम उस दिन सर्व कर देंगे. और हमें जब याद आया जब हम गुड़गांव सोना रोड पे थे, दिल्ली जयपुर से, और हाईवे, यार हमारा केक तो रह ही गया. Right? So the point is that if you are a 5-star hotel, the expectation of the customers remain similar. So one was a Taj, one was an Oberoi, 2 different brands, but both of them were delivering the same delight standards. When you go to a hotel, you go to a 5-star hotel, you expect certain standards, and if they are able to deliver on them, then they get what is called a positive feedback, जो हमने पहले वाली slide में लास्ट पॉइंट फीडबैक जो हमने डिस्कस किया था. ठीक है, सो वील गो हेड फ्रॉम देयर. ओके, नाउ कम्स देयर इज दिस थिंग कॉल्ड अ जोन ऑफ टॉलरेंस. आई एक्सपेक्ट माई कस्टमर, सो आई कॉल अप अ कॉल सेंटर, आई एक्सपेक्ट देम टू आंसर माई कॉल विद इन 5 minutes. एक्सपेक्टेशन है मेरी 5, बट अगर 5 के 7 हो गए तो क्या मैं लड़ूंगा? क्या मैं लड़ूंगा? आप लोग बताओ मुझे. व्हेन यू कॉल अप अ कॉल सेंटर, अगर 5 मिनट में उन्होंने बोला सर यू आर नंबर 2 इन क्यू, सर आर कस्टमर रेप्स आर बिजी, कोई लंबा कस्टमर है हु हैज मोर क्वेरीज, यू विल लाइक अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट की तो बात है. बट अगर वो 5 के 15 हो गए तो देन यू विल बी अनॉयड. सो दैट इज द जोन ऑफ टॉलरेंस. एडिक्वेट सर्विस वर्सेस डिजायर्ड सर्विस. सो ये मेरे साथ एक बार फिर हुआ. अगेन वी वेंट इन आवर एनिवर्सरी. हम घूमते रहते हैं, ठीक है ना. आई एम अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सर्विस इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, राइट. हम गए 2019 में, वी वेंट टू ताज, अनदर ताज. ठीक है, 15 में हम गए थे, फिर हम 19 में हमें टाइम मिला अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर रीजन. देन वी वेंट एंड दिस वॉज सम अदर ताज, दिस वॉज आई थिंक कॉर्बेट वाला ताज था. सो वी वेंट देयर एंड मेरे माइंड में एक्सपेक्टेशन थी कि दे हैव आस्क्ड मी, और उन्होंने नोट करा हुआ है, सॉ इट इन माई बुकिंग शीट विच दे गॉट मी टू साइन, दैट द पैसेंजर, कस्टमर क्या वर्ड था मुझे ध्यान नहीं, द गेस्ट हैज कम फॉर देयर एनिवर्सरी. और रूम में दे हैड डन सम एडिशनल थिंग, दे हैड मेड द रूम नीट एंड क्लीन, नाइस, हमें अच्छा सा रूम भी दे दिया उन्होंने, गुड लोकेशन, सो दे डिड दैट. बट व्हेन इट केम टू द केक, वो भूल गए. सो वी वेंट देयर ऑन आई थिंक ट्यूसडे नाइट, वी चेक्ड इन, और हमें सैटरडे मॉर्निंग निकलना था, संडे मॉर्निंग निकलना था, वन ऑफ दीज डेट्स. सो बाय फ्राइडे ना केक आया, ना केक की बात हुई. देन आई वेंट टू द डेस्क, मैं कहा यार एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने मुझे केक बोला था ना? हाँ जी सर. मैं कहा कहाँ है? सर हम भूल गए, आई एम सॉरी सर, अभी करवाते हैं. सो इवनिंग में वी वेंट फॉर डिनर. ये बात होगी कोई 6 बजे की. मैंने 6 बजे जाके फ्रंट डेस्क को गालियाँ दी थोड़ी सी. ऑब्वियसली मैं लाइक यार फ्री का माल है, फ्री का माल लेने के लिए थोड़ी सी तो पोलाइटनेस दिखानी पड़ेगी ना. सो आई टोल्ड देम, यू हैड मेंशन्ड वी हैव कम फॉर एनिवर्सरी, आरंट यू गाइस गोइंग टू डू एनीथिंग? मैंने ऐसे बोला होगा.
तो दे नहीं सर वील वर्क आउट सम सडनली उसको याद आएगा देन ही चेक द कंप्यूटर एंड ही सॉ अच्छा ये नोटिंग है इसमें बुकिंग के टाइम देन वी वेंट एट 8:30 वी वेंट फॉर डिनर एंड दे हैड दिस होल केक पूरा द होल कपल ऑफ स्टाफ मेंबर्स केम मेरे बेटे को उन्होंने कुछ कोई सॉफ्ट टॉय भी दिया था खेलने को दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको पता था कस्टमर नहीं तो गंदा फीडबैक देगा नेक्स्ट डे हम निकल रहे थे मॉर्निंग में सो द शेफ केम आउट एंड शेफ इज लाइक अ वेरी सीनियर पर्सन इन अ होटल ही केम आउट सर आपका खाना ठीक है सर वी आर सॉरी कल रह गया था केक स्वाद था ना आपका ब्ला 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 दे वर डूइंग देयर मार्केटिंग वर्क ऑल दे वर ट्राइंग टू डू इज जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस दिस गैप ये गैप हो चुका था but it was within my tolerance zone because the hotel was nice, the food was nice, the price was okay, the service was great except this one problem. So it was within my zone. But what they were trying to do was trying to minimize my discomfort so that I have a good reputation for that brand. I don't lose the positive perception. And that is what is here in this zone of tolerance. And how the zone of tolerance varies is due to the needs, service philosophies and desired expectations. So as a customer, I needed something special for a special date in my life. And if they didn't do it, then I went and complained. They tried to catch up because, and I also accepted it because I like, इतने सारे guests हैं, हो सकता है कि वो genuinely भूल गए हों. Because what happens in a hotel, you will see that the staff runs on shift timings. Every 8 hours a new person comes, 10 hours a new person comes. Maybe वो भूल गया अगला जो नया आया था. Maybe he didn't pay attention. Maybe he forgot. Maybe he was busy. So if that is my personal philosophy, I will ignore. So मेरा zone of tolerance बड़ा हो गया. So for example, I go to a bank. Since I have already worked in a bank myself, I had an experience of a year and a half in a bank. मुझे पता है बैंक में क्या ड्रामे होते हैं. In that sense. So when I go to my bank, चांस की बात है वही बैंक है जिसमें मैंने पहले काम किया था and I still retain my account with them. I like the bank. I didn't like the boss. ठीक है ना? I had a problem with the boss, not the bank. The bank is great, but my boss and my supervisors at that time were मेरी उनसे जेलिंग नहीं थी for whatever reason. 15-16 साल हो गए so out of picture. Record हो रहा है. I'm not taking the name of the bank. Okay, coming back, jokes apart, coming back. The point is, so when I go to the desk and there is this relationship officer who's supposed to deal with me as a customer, और वो phone पे, sir 2 मिनट बैठ जाओ please, he does it, sir 2 मिनट बैठ जाओ मैं अभी आपको देखता हूँ, मैं बैठ जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है when I was in his position, I would be hoping कि मेरा customer भी इतना ही flexible होगा, so मैं उस time में flexible हो जाऊँगा, so my personal service philosophy will vary, क्योंकि वो मेरी है, it will come from my experience and my background, so बैंक में होगा तो मैं छोड़ दूँगा. बट यही मेरे एयरटेल वाले अगर मुझे लेट कर दें तो मैं फिर उनको गालियाँ दूंगा बिकॉज आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस विद देम राइट दैट्स हाउ इट वर्क एंड डिजायर्ड एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे सो दिस गैप गेट्स क्रिएटेड एंड दैट गैप इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व. जो हमने सर्विस गैप्स मॉडल किया था वो इसी का ही वेरिएशन था एंड दिस इज द मॉडल फॉर लेवल ऑफ सर्विस. ऑल्टरनेटिव्स क्या है? सो अगर मैं होटल में गया आई कुड हैव इजीली कॉल्ड अप द कैफे इन द होटल एंड सेड मेरे को एक केक भेज दो. आई कुड हैव इजीली डन दैट, मेरे पास ऑप्शन था. बट व्हाई डिड आई वेट फॉर दैट सपोज्ड फ्री केक? फ्री किस एंगल से था? आई वुड हैव पेड अबाउट $30,000 फॉर द एंटायर ट्रिप. उसमें अगर 200 रुपये का एक केक आ भी गया तो फ्री तो किसी एंगल से नहीं था. बट द पॉइंट इज दैट देयर वाज द फ्री एक्सपेक्टेशन बिकॉज आई हैवंट पेड एनीथिंग फॉर इट. But I still had the alternative. I could call the cafe, I could call the restaurant and I would say, please deliver a cake to me. उनको क्या issue है करने में? So I have that. So if I have that, I'll still be like, चल यार adequate है छोड़ दो, चल जाएगा. Situational factors. So let's say for example, I'll give you an example of one of my colleagues. अभी he stays in Manali. His family is in Manali. He was coming to college. जुलाई की बात होगी जब ये मनाली में लैंडस्लाइड हुए थे. I don't know if you guys were following the news or not. जुलाई अगस्त में जब ये पूरा मनाली शिमला वाले हाईवे पे लैंडस्लाइड से सो ही गॉट स्टक इन वन ऑफ दोज लैंडस्लाइड्स. फॉर्चुनेटली फॉर हिम वो रात को ही लाइक 8-9 o'clock फंसे और सुबह 6 बजे चल पड़ी उनकी बस. सो ही वॉज हैप्पी एंड ही वॉज इन अ वॉल्वो, ही वॉज कंफर्टेबली प्लेस्ड, सो ही वॉज फाइन फॉर हिम. वॉट ही वॉज सेइंग वॉज दैट आई ऑल्सो गॉट डाउन. एक रोड साइड ढाबा था, वहाँ पे जाके आई हैड
tea and sandwiches. At that moment, for him, that was better than 5-star food. क्योंकि उस टाइम that situation was such कि उसमें चाय और सैंडविच भी मिल गए. He got a decent washroom to use. He was more than happy. But if it was a normal scenario where he's driving down or he's coming on his own, he has his family with him, and वहाँ पे उसको गंदी सर्विस मिलेगी, then he would have felt some annoyance. Same property, same thing it happens. So that is where the situational factors come in. Then comes my past experience. So like I said, I expect certain things based on past experience. Maybe one of my family members went and they said कि इस होटल में आप जाओ, इसमें ये additional services मिलेंगी आपको. I had that expectation. और अगर वो deliver नहीं होती, तो ये मेरा zone of tolerance shrink हो जाएगा. ये है, these factors are there which stretch the zone of tolerance. These factors are those which push it back. So उसमें लड़ाई हो रही है. So if I get good quality word of mouth, किसी ने मुझे बोला कि अच्छा है, और मैं उसके कहने पे चला गया और मुझे वो फैसिलिटी या सर्विस नहीं मिली, then what about my expectation? My zone will shrink because I will get angry faster. I will be annoyed faster क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि उसको मिली, मुझे क्यों नहीं मिली. And in the service encounter, there is always this thing of fairness. If two customers go to McDonald's and both of them ask for a Mac Aloo Tikki and they pay that 50 rupees for that Mac Aloo Tikki, एक को Mac Aloo Tikki के साथ फ्राइज फ्री में मिल गई. क्यों? क्योंकि वो जो काउंटर पे लेडी या लड़का है वो उसका फ्रेंड है, जो उसने साइड से फ्राइज दे दी उसको. What would I do as a customer? I'll feel annoyed ना कि उसको क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली. सेम पैसा दिया हमने, we've ordered the same product, we are consuming the same service, we've paid for the same service. Why is he getting a benefit that I am missing out on? Fairness. And that is where this whole zone of tolerance comes in. Now, the fun fact is, or the challenge is, if there are 30 customers in this class, all of them will have a different zone of tolerance. All of them will have a different zone. And that becomes challenging. किसको खुश करूं? इसको खुश करता हूं तो ये नाराज हो जाएगा, इनको खुश करता हूं तो पीछे कोई नाराज हो जाएगा. Sort. That is where the zone of tolerance comes. It varies from customer to customer, but you can make some generalization. So if there is a customer who comes with kids, they would want the restaurant to make some kid-friendly food, less salt, less spices, maybe French fries, जो menu पे नहीं है. But you can still ask them, and if it's a good quality hotel, they'll do it. I had an experience. My son was about 3 years of age. When I booked, मैंने उनको बोला मेरे को रूम में ना माइक्रोवेव ओवन चाहिए, मेरे को बच्चे का दूध गर्म करना होता है रात को. My son takes feed at night. Nothing wrong in it. घर पे है माइक्रोवेव, तो I was trying to replicate. So when I went to the hotel, they said, sir ये माइक्रोवेव ना खराब है इस रूम का. We are sorry, यही हमारे पास रूम था आपके लिए, but we'll figure out something. And what they did, even if I called up room service रात को 2 बजे, वो रात को 2 बजे मुझे गर्म दूध दे के आ रहे थे. They're trying to solve that. So there is a problem, there is an issue which I have. They were trying to figure something out. Whether it was successful or not, मुझे याद नहीं. 5 साल पुरानी बात है अब वो. I don't remember exactly what I was feeling at that time, but I do remember that even at 2 o'clock when we called for hot milk, somebody came with a flask to give us that hot milk. और डोर पे मैंने लिया, ये मुझे याद है. उसके बाद मेरी फीलिंग क्या थी वो मुझे नहीं याद, but at least the point is that they're trying to reduce this. The more I can shrink the zone of tolerance, the more my customer is going to go away with a satisfied perception. And in service marketing, the perception of satisfaction is more important. So like I said, when I have a kid and I have a person who's coming with children, they have certain set expectations. If I can deliver them, it's fine. I may not be able to give them exactly like the way I would cook at home, but अगर वो मुझे French fries भी दे दें, मेरा बच्चा खा लेगा. I am okay with it. वो मेरी adequate service में चला जाएगा. वो predicted है. They predict कि बच्चा होगा तो वो something like French fries मांगेगा. Might as well keep it ready. आया customer ने बोला cook करा, serve कर दिया. I'm not saying get the fries ready, cooked and ready. जैसे McDonald's में भी होता है, they keep cooking them every few minutes.
give them fresh, but at least have that option available. And I've had that, we've had a good experience. हमने majority हम hotels में जब भी गए हैं बच्चे के साथ, we've never had an issue, for fingers crossed. पता चला हम कल ही कहीं जा रहे हैं और वहीं से मेरा next example is इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, right? So I could do that also, right? So we have to do it. That is where experience and predictions come in. So when they expect a couple coming, they may want those देखो rose petal से कुछ नहीं होता है, but it's just a so-called societal expectation. कुछ नहीं होता. And those of you, whenever you get married, if you are getting married in Delhi, एक के बाद function होता है, and when you go for your so-called honeymoon, you use that time to sleep. You getting my point? So the point is उससे कोई फर्क नहीं पड़ना वो rose petals 2-5 रुपए के गुलाब के फूल उन्होंने अगर डाल भी दिए 10 रुपए के आपके बेड पे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपको. But what is it adding to? Perception of service. At least somebody bothered. कोई effort किया उन्होंने extra. Normal customer से extra मुझे treat किया. And that is all that we want. Another example of that extra treatment. So I went to Agra वाली trip में. So it was July, बारिश हो रही थी of course, थोड़ी करके. And you know when you drive a car in the rain, गंदी हो जाती है. So by the time हम गए, we went on the Delhi-Agra expressway. आगरा तक बारिश होती रही. जब हम आगरा उतर गए एक्सप्रेसवे से till our होटल, वो 5-6 किलोमीटर बारिश नहीं थी. सो गीली गाड़ी पे मिट्टी एंड ऑल दैट. सो माई कार वॉज ग्रे कलर की कार थी, वो विंडो सिल से नीचे ब्राउन हो चुकी थी. मैं कहा यार चल छोड़ बाहर में, जब मैं सफाई करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, आई विल ड्राइव अ डर्टी कार, आई डोंट केयर, मैं घर जाके साफ करवा लूँगा उसको. बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट द होटल हैड हायर्ड अ गाय. All his job was to clean the cars of the guests in the parking lot. He didn't charge me anything. वो वहाँ था तो मैंने उसको 20 rupees दे दिए. If he wasn't there, if I hadn't seen him, I wouldn't have done that also. वो tip दे दिया उसको. But the hotel had ensured कि there is a guy to clean my car on that place. So again, उससे क्या value हुई? मुझे कोई फर्क पड़ा उससे? गाड़ी गंदी है तो बाहर गंदी है ना, अंदर तो साफ ही. हाउ डज इट मैटर टू मी? बट इट मैटर्ड बिकॉज समबडी ट्राइड. आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक? व्हेन यू आर डिलीवरिंग योर सर्विस, गिव योर कस्टमर्स द परसेप्शन कि आपसे जितना बस का था आपने उससे 1% एक्स्ट्रा ही करा है, 1% कम नहीं करा. दैट इज व्हाट विल रिड्यूस दिस, एंड दिस इज व्हाट विल गिव मी a good perception of service. That is all that we want. ठीक है? What are the customers' expectations? But अब customers की expectations में भी आपके पास एक second point है, unrealistic. Can you give me an example of an unrealistic expectation that you would have? आपके लिए वो अच्छी है, but it's very difficult to fulfill for the person who's delivering that service. Yeah. अनरियलिस्टिक नहीं, मेरे साथ 2 बारी हो चुका है. एक बारी लेट आया था और एक बारी दे केम, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द गाय, ही हैड दैट, वो बैग था, वो बैग से टेढ़ा हो गया. सो मैं पिज्जा हैड एक साइड सिर्फ अनियन, एक साइड सिर्फ टोमेटो एंड चीज बचा और एक साइड सारी टॉपिंग्स चली गई. आई डोंट नो इफ दैट हैज हैपेंड विद यू और नॉट. और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मुझे पता नहीं, एक होता है ना इंट्यूशन. मैंने पहली बारी उस दिन पिज्जा खोल के चेक करा. डिलीवरी यूजुअली वो देता है, मैं ले आता हूँ अंदर एंड वी ओपन इट, उसके बाद जो होता है देखी जाएगी टाइप्स. आई ओपन एंड आई कंप्लेन. सो ही कॉल्ड अप हिज बॉस, ही वाज लाइक अच्छा सर, तो ही टुक अ फोटो, व्हाट्सएप करा एंड ऑल दैट, एंड ही वाज लाइक ठीक है सर, वील. 10 minutes लेटर अ ब्रांड न्यू पिज्जा केम. तो मेरे पास उस टाइम 2 पिज्जा हो गए, एक वो आधा टेढ़ा पिज्जा और एक प्रॉपर पिज्जा. सो आई गॉट 1 पिज्जा फॉर फ्री इन दैट सेंस. ओ ठीक है टेढ़ा था बट टॉपिंग्स तो टेस्टी थी ना. So the point is that could be an unrealistic expectation कि I will get things for free. Customers usually expect lots of things for free. Sometimes it is not possible. So मैं जैसे अभी होटल गया था जुलाई में, I was prepared to pay for an extra bed. But उनको पता था कि the customer that comes to our hotel is a family customer, which means कि सबको extra bed चाहिए. बट हम इंडियंस हैं, हम बड़े वाला रूम नहीं बुक करते, हम छोटे वाले रूम में ही रहते हैं. ठीक है ना, बिकॉज वी आर ऑन अ बजट, एवरीबडी इज ऑन अ बजट इन दैट सेंस. ठीक है. सो व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड, नाउ दे नो कि हमें कस्टमर को एक्स्ट्रा बेड देना है.
सो दे हैड लाइक 50 रूम्स होंगे होटल में. मैंने चेक करा, आई सॉ इन टर्म्स ऑफ द रूम्स दैट वर ओपन एंड ऑल, दे हैड एटलीस्ट 30 एक्स्ट्रा बेड्स विद देम, मीनिंग कि मेजॉरिटी कस्टमर को एक्स्ट्रा बेड मिल जाएगा. बट दैट इज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. बट इफ आई एक्सपेक्ट देम कि रात के 2 बजे वो मेरे बेटे के लिए फ्रेंच फ्राइज बना के देंगे, दैट इज अनरियलिस्टिक. दो दे हैव अ फुल रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग, बट नॉट एट 2 o'clock एट नाइट ना. कभी कभी मेरे बेटे को रात को सडनली मेरे को वो नहीं करना, शाम को कुछ नहीं खाना, डिनर नहीं करना, बट 12 o'clock लाइक आई एम हंग्री. At home, you can still do it because you are the one who's doing everything. You can go down and make, you can go to the kitchen and make whatever he's asking, within limits of course. But you can't expect that in a hotel. मैं उसको रात को 2 बजे बोलूँ, यार मेरे को ना एक प्लेट मैगी चाहिए. That is unrealistic. Are you getting the point that I'm trying to make? But customers have unrealistic expectation. मैं जाऊँगा, मेरे लिए 4 लोग बाहर खड़े होंगे, ढोल नगाड़े बज रहे होंगे मेरे लिए, सर आप आए. That's unrealistic. That's unrealistic. ठीक है ना? So what do I do if my customer is so what do I do? So what does the hotel do if at 2 o'clock at night I call them up and I say मुझे room service में मैगी चाहिए, and the hotel promises 24-hour room service, but मैंने उनसे मांगा outside the syllabus question मैगी तो नहीं होगा ना 5-star होटल में. अब वो रात को 2 बजे तो किसी को भेजेंगे नहीं जाके मैगी लेके आने के लिए कि बनाए वो मेरे लिए मैगी. That is unrealistic. So what do I do? So let's say I am the customer service manager और मुझे somebody called up at 2 o'clock at night, I need Maggi. मैं क्या बोलूँ कस्टमर को? मना करूँ? कैसे मना करूँ? करूँ तो कस्टमर गालियाँ देता है, नहीं करूँगा तो मैं सर्व कैसे करूँ? I don't have Maggi with me and 2 o'clock at night there is no Blinkit, there is no Zepto. दिल्ली थोड़ी है और Blinkit Zepto भी 11 बजे के बाद नहीं चलता. I don't know if you guys have tried. I don't know उनकी क्या टाइमिंग्स है, मुझे नहीं पता. बट वो भी रात को 2 बजे तो नहीं कोई ब्लिंकिट करके आपको मैगी का एक पैकेट देने आ रहा ना. डजंट मेक सेंस, राइट? सो व्हाट डू आई डू? अब मैं फंस गया ना. हाँ बोलूँ तो आई कैन नॉट डिलीवर, ना बोलूँ तो कस्टमर लड़ेगा. व्हाट डू आई डू? देन आई प्रोबेबली हैव टू फिगर आउट लाइक, नहीं सर मैगी तो नहीं है, बट कैन आई गेट योर सन अ ग्रिल्ड चीज सैंडविच विद फ्राइज, जो मेरे पास है स्टॉक में. अच्छा चलो यही भेज दो. Getting? So that's how you handle it. Give the customer a viable alternative. और उसको बोलो नहीं यार मेरे पास ना दाल और नान है, मैं भेज दूँ. Will a 6-year-old child have dal and naan at 2 o'clock at night? Obviously not. Give a viable alternative. Give a realistic alternative. That's where the challenge lies. Right? Now comes the second question. Should you try to delight your customer? Customer आया, like I gave the hotel वाले example. That cake was a delight. फ्री में मिला, डिलाइट था. शुड दे ट्राई टू डिलाइट मी? येस और नो? शुड दे ट्राई टू डिलाइट मी? ओके, व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डिलाइटिंग? अभी मैं आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है अभी. सो यू गाइज अग्री कि होना चाहिए डिलाइट, ठीक है? डिलाइट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी अ केक, इट कुड बी द कार वॉश, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? सो यू से yes, we'll discuss this yes a few minutes down the road. Now comes the second question. How do I exceed my customers' expectations? By giving them delights, giving them additional features. ये तो clear है. But the question comes, should I exceed my customers' expectations? Because look at the next question. Does the customer service expectations escalate continuously? So मैंने केक भी ले लिया, लाइक यार केक तो दे ही देते, और क्या करोगे मुझे डिलाइट करने के लिए? Getting the customer logic. Maybe they give me, वो कई होटल्स हैं वो कहते हैं if you are coming as a couple sort of thing, they have these packages and all. तो उसमें कहते हैं we'll throw in a spa treatment extra, and they say it's a couple spa treatment. Again, but you pay for it, that's all right. The point is that पहले तो केक था, फिर केक के ऊपर स्पा ट्रीटमेंट आ गई, फिर मैं कहता हूँ नहीं मुझे एक रोमांटिक डिनर भी चाहिए बाहर बालकनी में कैंडल लाइट में. व्हाट इज हैपनिंग नाउ? व्हाट इज हैपनिंग? बढ़ती जा रही है, और उस एक्सपेक्टेशन जब बढ़ती जा रही है उसको डिलीवर करने की कॉस्ट है, ठीक है ना? सबसे बड़ा मैं ये कहता हूँ कैंडल की कॉस्ट ही होगी. कैंडल लाइट डिनर में कैंडल की तो कॉस्ट हुई ना, बाहर लगाना टेबल, उसको सेटल करना, एक वेटर को डेप्यूट करना सिर्फ मेरे लिए. एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. सो व्हेन आई रेज इट, अब मैंने उनको केक भी दे दिया, स्पा ट्रीटमेंट भी दे दी, कैंडल लाइट डिनर भी दे दिया. नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आएगा यार अब क्या?
So the point is that as the standards or as the expectations escalate, I am creating a problem for myself. कितनी डिलाइट करूंगा मैं? There's a limit. एक मेरी एक फाइनेंशियल लिमिट है. मैं ये नहीं कह रहा आई कैन नॉट डू इट. द पॉइंट इज व्हाई शुड आई डू इट? मेरा बजट नहीं है. व्हाई शुड आई डू इट? इट्स नॉट इन माई बजट. व्हाई शुड आई बॉदर? And if they do escalate continuously, then comes the question, unrealistic and customer delight. क्यों करूं मैं डिलाइट कस्टमर को? ये उसका नेगेटिव है. प्रो इज द कस्टमर इज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. बट इफ आई एम हैप्पी, अगर आपने मुझे केक दे दिया, डज दैट मीन कि मैं एक्स्ट्रा सर्विसेज कंज्यूम करूंगा आपकी प्रॉपर्टी में? डज दैट मीन दैट? विल आई पे फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज लेटर ऑन? नो. मैं खुश हो गया, मैंने एक अच्छा सा फीडबैक दे दिया. इज दैट सफिशिएंट? मे बी नॉट. डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डिलाइट इज बीइंग offered to the customer. Okay, and the last part, how does the company stay ahead of its competition in meeting the customer expectations? 5-star होटल है, ताज भी है, ओबरॉय भी, आईटीसी भी है, बहुत सारे हैं, सबका वही स्टैंडर्ड्स हैं. सो मैं उनको हाउ डू आई कम्पीट? अगर ताज भी वही केक दे रहा है और ओबरॉय भी वही केक दे रहा है, तो हाउ डू आई कम्पीट? हाउ डू आई गेट द कस्टमर बैक टू माई प्रॉपर्टी? प्राइसिंग इज वन, बट प्राइसिंग अगर लो करता हूं तो किसकी जेब से जाता है डिस्काउंट? वेयर डज इट प्राइस डिस्काउंट गो फ्रॉम? हुज पॉकेट? हु पेज फॉर दैट प्राइस डिस्काउंट? आई पे फॉर इट ना, मेरी जेब से जा रहा है. दैट मे नॉट बी रियलिस्टिक इन द लॉन्ग रन. आज तो दे दिया, कल का क्या? राइट. सो दैट इज वन क्वेश्चन. हाउ एल्स डू आई स्टे अहेड? इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी वही मार्बल फ्लोरिंग है, वही स्विमिंग पूल है, वही बुफे है, वही प्लेट्स हैं, वही लेआउट है. मैंने बहुत सारे देख लिए. अब तो सब भाई बहन है, जेन्युइनली सब भाई बहन है. हाउ डू आई डिफरेंशिएट? एक हाँ, अगेन कॉस्ट है ना, 5th डे की कॉस्ट है ना. 5th नाइट अगर मैं रह रहा हूँ तो मेरे तो जेब से जा रहा है ना. I got your point. The point is that what you are suggesting has a monetary impact. I can give better services at a lower price, or I can give more services for the same price. आप वही कह रहे हैं ना, एक 4 दे रहे तो मैं 5 दे देता हूँ, चलो. But everything has a cost component. And if I offer better infra, but if I cannot charge for it, then what? Then what? वो भी तो खर्चा है. रिकवर नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगा उसको पूरा? So I can in a hotel room I can give a customer high speed LAN access. But जो customer छुट्टी के लिए आया है, does he really need that high speed LAN access? Maybe he needs a bigger swimming pool so that more people can be in the same swimming pool at the same time. Maybe he wants that. Depending on what the customer needs. Yeah. So service presentation is the main thing. I think in the today's day. How? What do you define by service presentation? So the way they are. हाँ जी, sorry. Maybe the personality of the employees, the way they are interacting with me. Yeah. सर जैसे आपने केक की बात की, तो संबंध जैसे किसी ने नॉर्मली केक दे दिया और आप जैसे बता रहे कि सारे स्टाफ वाले आके क्लैप भी कर रहे हैं, सिंग भी कर रहे हैं आपके लिए, और आपके चाइल्ड को भी वो कर रहे हैं. Right. Right. तो सर जैसे प्रेजेंटेशन डिफरेंशिएट. Perfect. So this is what. So getting 2 waiters to just come and say, "Sir, happy anniversary," and go back to their duties has no cost. But it adds on to me staying ahead of the competition. Polite staff. उसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा, ट्रेनिंग तो मैं दे ही रहा हूँ उनको. Yeah. I could do that. हाँ. So maybe you can make it free. So for example, when I went, they said, "Sir, kids area ना आपके लिए complimentary है. जा बेटा खेला." कॉम्प्लीमेंट्री है तो ठीक है, खाली बैठा है. एक्चुअली वो स्टाफ भी खाली बैठा है, मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री देने से वो स्टाफ की भी सैलरी रिकवर हो रही है, मैं भी खुश हो रहा हूँ, कोई मॉनेटरी पेनल्टी नहीं, एवरीबडी इज हैप्पी. इट्स अ विन विन. कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज इन जो सर्विसेज आपके होटल में कम यूज़ हो रही हैं, अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री दे दो, इसी बहाने वो सर्विस भी तो यूज़ हो जाएगी ना. So many hotels do that if you come, we'll give you bar access, 2 complimentary drinks per night. को पता है वो 100 रुपये नहीं लगने उनके 2 ड्रिंक्स में, बट कस्टमर खुश हो जाएगा क्योंकि वो ड्रिंक्स की MRP इज $400. कस्टमर विल फील हैप्पी, मुझे 800 रुपये के ड्रिंक्स मिल गए. से स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू गोवा,
स्पेशली मैटर्स इन अ प्लेस लाइक व्हाट ड्रिंक्स मैटर, क्योंकि आप वहाँ पे जाइए उस पर्सपेक्टिव से रहे हैं. परफेक्टली एक्सेप्टेबल, नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इट, इट्स योर पर्सनल चॉइस वेदर यू ड्रिंक और नॉट. मेरा वो नहीं है, एथिक्स वाला पार्ट नहीं है. पार्ट इज कि गोवा में ड्रिंक्स विल बी वैल्यूड. सो इफ आई गो टू कॉर्बेट लाइक सफारी और बोलते सर कॉम्प्लीमेंट्री ना हम आपको ना इंडिविजुअल जीप में भेज देंगे, इंस्टेड ऑफ यू शेयरिंग विद समबडी एल्स वील गिव यू द सेम जीप फॉर यू एंड योर फैमिली ओनली, नो शेयरिंग. मेरे लिए बेनिफिट है. या राइट. हाँ, so many do that. Many of them promise bonfire nights on Fridays. तो एक bonfire जला दी, थोड़ा बहुत कुछ सर्व कर दिया और customers are very happy कि भाई bonfire night मिला. So these are the small things that matter. Using existing resources to give the customer a better service experience will actually be more sustainable, and that will help me stay ahead of the competition. एक और है, there was this one cafe in शिमला, मुझे याद नहीं क्या नाम था उसका. We had gone there and उसका signature dish था wood oven में wood fired pizza. So I don't know if you ever had वो जो तंदूर टाइप होता है ना, wood gives the food a different flavor and taste. And because that was their USP, they were able to create a differentiation in the minds कि यार wood fired pizza चाहिए तो यहीं पे ही मिलेगा. पिज़्ज़ा डोमिनोज भी है, पिज़्ज़ा हट भी बहुत सारे हैं, बट इफ़ यू वांट दैट ऑथेंटिक टेस्ट दे आर द वंस टू हैव इट. उसमें क्या हुआ, एक बारी वन टाइम कॉस्ट है मेरी कि आई हैव अ ओवन विच वर्क्स विद वुड, दूसरे वाला फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, कॉस्ट तो है ही है ना कहीं ना कहीं. सो प्रोबेबली आई कैन डू समथिंग विच क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द माइंड, विच गिव्स द कस्टमर अ यूनिक सर्विस विदाउट एडिंग टू मच टू माई कॉस्ट. क्योंकि ये एक बैलेंस है. मैं कस्टमर को डिलाइट तो कर दूंगा, बट फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो वो जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं उनको देने में मेरी कॉस्ट बढ़ती जा रही है. अब मैं रूम प्राइस बढ़ाता हूँ तो कस्टमर कहते हैं नहीं मैं नहीं आ रहा इधर, नहीं बढ़ाता हूँ तो मैं लॉस में हूँ. इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट. सर्विसेज के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि कॉस्टिंग ऑफ सर्विसेज इज वेरी डिफिकल्ट, वेयर एज कॉस्टिंग फॉर अ पेन इज डर्ट ईजी. प्लास्टिक की बॉडी इतने की है, इंक इतने की है, टिप इतने की है, पैकेजिंग इतने की है, खत्म. सर्विस को कैसे प्राइस करूं? बिकॉज द सर्विस इज बीइंग डिलीवर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, which makes it interesting, flexible and unique. Adds on to my challenge. Every service encounter is unique. होता है ना, जैसे मैंने पहले भी शायद आपको बोला था, आई कॉल्ड अप अ कॉल सेंटर, वो कहते हैं सर मेरे पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट हो जाएंगे मैं आपकी कॉल काट दूंगा, 3 मिनट में पूछ लो जो पूछना है. I have a limit, but I can't say that to my customer, of course. But there could be a customer जो बहुत सारे questions पूछ रहा है, और दूसरा है जिसको काम की बात करनी है, वो वेट कर रहा है, और जो बहुत सारे फालतू के क्वेश्चन पूछ रहा है उसने ऑक्यूपाई तो कर लिया स्टाफ को, वो तो सेटिस्फाई हो गया, मैं अनॉय हो गया. किसको खुश करूं? उसको सेटिस्फाई करूं कि आपको अनॉय करूं? दैट इज द $multi-million क्वेश्चन. हु शुड बी अनॉयड फर्स्ट? विच इज वाई बैंक्स डू, बैंक्स में स्पेशली आपको दिखेगा वेल्थ बैंकिंग, प्रिविलेज बैंकिंग, उनका एक अलग से काउंटर होता है. सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से काउंटर है, फॉर एग्जाम्पल. दैट्स द रीजन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंशियल सर्विस विदाउट अनॉइंग एनीबडी. सो जो वेल्थ वाला मुझे पता है ही विल हैव अ लोअर जोन ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि वो कहता है जी मैंने आपके बैंक में इतना सारा पैसा है मेरा आपका, मेरे को तो जल्दी सुनो. SBI में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम SBI में आती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट सर्व्स द मोस्ट. सो योर रिक्शा पुलर, योर ई-रिक्शा ड्राइवर इज ऑल्सो देयर, एंड इन माई एरिया somebody who's walked up to the branch in a Mercedes S-Class is also in State Bank of India, which is precisely why they've come up with SBI Wealth. इसीलिए तो करा है ताकि दोनों कस्टमर्स को हम सेम ब्रांच में ट्रीट कर सके विदाउट एनीबडी फीलिंग ऑफेंडेड. राइट? अगर मैं लाइन में लगाऊं और सडनली कोई बाईपास कर जाए मुझे, तो फिर मैं अनॉय नहीं होऊंगा. आई मे बी अ पुअर कस्टमर, आई मे नॉट बी अ वेरी रिच कस्टमर, बट इट डजंट मीन दैट आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस. इट डजंट मीन कि मेरे राइट्स नहीं है. ठीक है, उसके राइट आप इन दैट सेंस देख लो ज्यादा होंगे,
but I still have certain rights. One of the rights is fair treatment. But when I have a separate counter, it's only for wealth citizens who carry a special card. ठीक है जी, आ जाओ, कार्ड स्कैन करो, घुस जाओ अंदर. Nobody has any problem with it. मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, मेरी लाइन में नहीं आगे जा रहा, और उसको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ रहा. एवरीबडी इज हैप्पी. Makes you differentiate. So sort of different but equal. ऐसे करना है. That's how we need to manage. Right? Yeah. आएगा अभी, नेक्स्ट है, अभी आएगा. एक स्लाइड बाद ये, एक या दो स्लाइड्स बाद ये. जिम पे पूरा एक एग्जांपल है ऑन हाउ अ जिम वर्क्स एंड हाउ द सर्विस एक्सपेक्टेशन हैंडल्स दैट. आई हैव दैट. ओके. नाउ दीज आर सम थिंग्स फॉर अस टू रीड. ऑनेस्टली दिस इज समथिंग फॉर रीड. हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑल आई वांट इज टेक 2 minutes, जस्ट रीड द बेसिक्स. और जहां नहीं समझ में आता मुझे बताओ. आई डोंट लाइक डूइंग दैट, बट ये ना पढ़ने वाला ही पार्ट है. आप लोग पढ़ लो इसको भाई. 4 स्लाइड्स हैं ऐसी. 2 minutes वील स्पेंड ऑन देम एंड देन वील गो बैक टू आवर, जहाँ मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सो रहे हो मेरी आवाज़ सुन के. राइट, द सेम नॉर्मल वे ऑफ ऑपरेशन. राइट, करो. 2 minutes के लिए आप लोग देख लो एंड आई शेयर द स्लाइड्स. इफ यू वांट टू टेक स्नैप्स, योर चॉइस, बट आई शेयर द स्लाइड्स. तो ऐसा कोई इशू नहीं है, योर चॉइस. ये आपको होगा गाड़ी के साथ. गाड़ी सर्विस करवाई, ठीक नहीं किया एक बारी, फिर दोबारा जाना पड़ रहा है, विच विल मेक यू अनहैप्पी. वही रिपेयर वाला है, अप्लायंस रिपेयर. एक ही चीज़ बार बार कराते रहो. आज कुछ खराब हो गया, कल कुछ और हो गया, मैं सारा दिन उसी के पास बैठा हूँ, विच मीन्स आई एम अनहैप्पी. एक्सप्लेनेशन. सर द फ्लाइट इज डिलेड बिकॉज समथिंग हैपेंड. कोशिश की समझाने की. समथिंग हैपेंड. सो लाइक आई सेड, now my colleague was late in coming to college the next day, but he had messaged us ki look, I am trapped, the bus isn't moving, मैं late हो जाऊंगा. He messaged information. This is between colleagues, but I am just giving an example of explanation कि ऐसे होता है जी, आपकी कार में ये फैसिलिटी रॉन्ग है, ये सर्विस रॉन्ग है, हम ऐसे रिपेयर कर रहे हैं उसको. टेल अस एज अ कस्टमर, टेल अस. रिस्पेक्ट है, लिसन्स टू देम केयरफुली. हाँ, ये डॉक्टर के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है. मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ. एक भाई मेरी वाइफ गई अभी थोड़े दिन पहले टू गेट माई सन एग्जामिन्ड एंड द डॉक्टर वॉज ऑन द फोन. क्या उन्होंने ना देखा नहीं मेरी तरफ ढंग से. He didn't give me that impression that he is listening to me. He was listening, he was giving us the right medicine, blah blah blah. मेरा बेटा ठीक भी हो गया जल्दी से उनकी दवाई से. So nothing wrong with the service outcome, but the delivery of service on that day was a little bit. She was like, यार ये ऐसे क्यों किया, वो फोन में घुसे हुए थे. मैं कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, अगली बारी देखते. इफ इट्स अ पैटर्न देन वील एग्जामिन इट, बट इफ इट्स अ वन ऑफ तो सब छोड़ देते. जोन ऑफ टॉलरेंस. सो रिस्पेक्ट. आई वांट टू फील वैल्यूड. हाइजीन, नीट एंड क्लीन, होटल, रेस्टोरेंट, फूड, व्हाटएवर. मैकडॉनल्ड्स करता है. Food is cooked and I don't know if you know, McDonald's has this 10-minute window. So any food which has been prepared and it is not sold or consumed in the next 10 minutes, they destroy it. They don't deliver it to the customer. So उनको लगता है कि हमारा food 10 minutes के बाद spoil हो जाएगा. Which could happen if you any of you tried, कभी करना अगर नहीं करा तो Subway का सैंडविच लेके आना घर तक और फिर उसको खाना. वो ब्रेड पूरी सॉगी हो चुकी होती है वो सॉसेस के साथ में. Nobody's fault. That's what McDonald's does. उनको पता है कि 10 मिनट में हमारा खाने की जो शेप है, एक्सपेक्टेशन है, वो डिक्रीज हो जाएगी. Might as well destroy that food than incur the loss of customer expectation. Any food industry for that matter. McDonald's का मुझे फिगर याद है, डोसा पर भी हो सकता है क्योंकि मसाला डोसा स्पेशली जैसे आपने उसमें मसाला डाल दिया वो सॉगी होना शुरू हो जाएगा. The clock has started and if you deliver it fresh, कस्टमर खा लेगा तो इशू नहीं है. बट इफ इट्स बीइंग होम डिलीवर्ड, ये डोसा के साथ सबसे बड़ा इशू है. डोसा बीइंग होम डिलीवर्ड, यूजुअली यू विल गेट अ सॉगी पाउच. जो किसी ज़माने में एक डोसा हुआ करता था, आज एक आलू का पाउच है. राइट, बिकॉज दैट्स हाउ इट हैपेंस. नोबडीज फॉल्ट. राइट, विच इज़ वाई डोमिनोज का पिज़्ज़ा कार्डबोर्ड के डब्बे में आता है. शेप रिटेन करता है अपनी. राइट, अदर लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन. ये 6-7 स्लाइड्स हैं, तब 7-8 वैराइटीज हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैं अमेजोन के साथ करता हूँ.
आई एम योर कस्टमर, गिव मी, हेल्प मी विद सम एक्स्ट्रा फैसिलिटी और सम एक्स्ट्रा सपोर्ट. मैंने एक बारी क्या, मैंने उनको ये बोला, मैं आई एम योर 10 ईयर ओल्ड कस्टमर, मेरा ऑर्डर डिलेड है, अभी तक आया नहीं है. सर मैं करवाता हूँ, 2 घंटे में ऑर्डर घर पे आ गया. So they deliver. They had a little bit of flexibility in the system to help out when a customer is genuinely asking. But यही मैं अगर उनको रोज कॉल करूँ कि मेरा ऑर्डर लेट है, मैं 10 साल पुराना कस्टमर हूँ, वो भी पक जाएंगे. I always give this analysis that शेर आया analogy. कितनी बारी मैं बोल लूँगा कि शेर आया जबकि शेर नहीं आया. Eventually when I actually need their help, मैं यार ये तो रोज ही फोन कर देता है भाई. We don't need to listen to him. इसका तो रोज का ड्रामा है. And on that day I genuinely need the product early. So you use that flexibility only when you need it, not every day. फिर वो उसका ना मीनिंग खत्म हो जाता है, इम्पैक्ट खत्म हो जाता है. राइट? अर्जेंसी, सेम थिंग, अर्जेंसी. ये हम लोग करते हैं when you are filling a tax returns. 20 जुलाई को हम अपने टैक्स वाले बोलेंगे भाई मेरा जमा कर दियो तो पहले. कहते यार तो मेरे को जून में देता ना, मैं तेरा हाथ के हाथ कर देता. नहीं भाई मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो डेडलाइन वाले, देखो डेडलाइन से 10 दिन पहले दे दिया, खुश रहे. दैट वुड बी आवर लॉजिक. वी एक्सपेक्ट देम अर्जेंसी, मेरा काम कर दियो. दैट डजंट वर्क. इट मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल समटाइम्स, मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल. राइट? ड्राई क्लीनर भाई एक दिन कपड़े प्रॉपरली प्रेस होके आए, एक दिन क्रश होके आए हैं, तो नहीं चलेगा. कंसिस्टेंसी इन सर्विस, हैसल फ्री, सिंपल. कारण आप लोगों के साथ ये कभी होगा, ये भी एक आएगा, इस पे भी एक टॉपिक है, विल बी डिस्कसिंग दिस ऑल्सो, दैट हाउ मेनी ऑफ यू, जैसे अमेजोन में होता है, कभी आप लोग करना, ऑल ऑफ यू हैव एन अमेजोन ऐप ना, उसमें ढूंढना हाउ इजी इट इज टू एक्सेस द कस्टमर सर्विस नंबर. यहाँ पे आते हैं ना कॉल मी नाउ. आजकल दे मेड इट इवन मोर डिफिकल्ट. वाई? बिकॉज दे लाइक कि जितना ईजी होगा उतना कस्टमर फटाफट कॉल करता है, फालतू के क्वेश्चंस के लिए भी करता है जो ऐप से सॉल्व हो सकते हैं. बट व्हाट दैट डज टू अ जेन्युइन कस्टमर लाइक मी व्हेन आई एम कॉलिंग फॉर इश्यूज इज, यार 10-12 स्टेप्स होगी, मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, कस्टमर सर्विस का एक्सेस का है. सो दैट कैन क्रिएट अ हैसल. समटाइम्स क्या होता है, मेरा मैकेनिक आता है, भैया ये पकड़ गाड़ी की चाबी, ये रही गाड़ी, ये खराबी है, ठीक करती हो. मेरे को ये मत पूछ भैया ये पार्ट खराब है, वो पार्ट खराब है, ठीक करती हो. Solve the problem, hassle free, make it easy for me. Okay, ये I think last है, हाँ ये last है, 3 है, 3 sets है, ये last है. Promptness, speed of service. टेलर के साथ होगा ये आपका competence. If you get dresses stitched, those of you who've gone for stitched products, you cannot get them stitched from everybody. Competence issues है. Reliability issue, आपको उससे comfort नहीं है, वो ढंग से नहीं सिलेगा. Have that perception, right? Empathy, fairness. सर मुझे समझ में आया आपको क्या प्रॉब्लम थी, let me try and help you. I can understand your problem. If somebody says that to you ना, आप अगर गुस्से में भी हो ना, आपका गुस्सा एकदम से ठंडा हो जाता है. सर मैं समझता हूँ, let me try. 2 words, I understand, let me try to solve it. That's it. And your customer's anger is reduced by at least 50%. If not more, at least 50% वो वहीं शांत हो जाएगा. Right? So that's where how we manage the service encounter is where the quality lies. ठीक है ना? Then comes the service offering. Now let's take a class. Let's take this classroom as a service offering. You know, you've paid to join this service, and we have the service divided into 3 categories. One is basic service, जो हमें अभी स्टार्ट ऑफ द क्लास में दिक्कत हो रही थी डिलीवर करने में, विच इज प्रोजेक्टर ऑन नहीं हो रहा था. द बेसिक सर्विस, वी एक्सपेक्ट द बेसिक इंफ्रा, एसी ऑन है, प्रोजेक्टर चल रहा है, बोर्ड है, क्लीन है, द फैकल्टी इज देयर ऑन टाइम, देयर इज एन अटेंडेंस शीट सर्कुलेटिंग, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर योर बेसिक्स, मस्ट. ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो सर्विस एनकाउंटर एग्जिस्ट नहीं करता. अब आप पीवीआर गए और वहाँ पे मूवी ही नहीं है, मूवी तो होनी चाहिए ना, उससे उसके बाद आप पॉपकॉर्न पे आओगे ना कि वो अच्छा था कि नहीं था. अगर मूवी ही नहीं है तो ये वो वाला हाल है. द मस्ट इज एटलीस्ट देयर इज अ मूवी प्लेइंग, और वही प्ले करिए जो आपने जिसके पास जाना है. ऐसा ना हो मैंने टिकट ली जवान की और पठान प्ले हो रही है. सेम एक्टर, सेम लॉजिक, सेम स्टंट्स, बट आई पेड फॉर, आई वांट टू वॉच जवान, आई डोंट वांट टू वॉच पठान. मस्ट. सो डिलीवरिंग द बेसिक सर्विस
at a proper point. I go to a Starbucks and I say I want इलायची टी, and they say नहीं सर इलायची नहीं है हमारे पास ना जिंजर है, चलेगा? If it's on the menu you have to deliver, must. मत डालो ना मेन्यू पे, लिखो we have ginger tea only. स्पेशल्स वाले बोर्ड पे लिख दो we have ginger tea. आजकल चल रहा है, आई डोंट नो स्टारबक्स आप लोग, मैं कभी गलती से साल में एक बार जाता हूँ, वो बट मैं मैसेज वो लोग रोज करते हैं, और उन्होंने मेरे से ऐप डाउनलोड करी, वो ऐप पे रोज मैसेज आ जाता है. सो देयर इज दिस न्यू थिंग दैट दे आर ऑफरिंग कॉल्ड पंपकिन स्पाइस लाटे. पंपकिन से ना दे मेक स्पाइस, और ये अक्टूबर ऑटम में हैलोवीन में इट बिकम्स अ थिंग. वो अक्टूबर में ही आती है, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, जुलाई में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, अक्टूबर में आती है. इट्स वेरी स्पेशल, जैसे होली में गुजिया हो गई, सम जैसे क्रिसमस के वो रम केक्स हो गए, क्रिसमस में ही मिलेंगे. ऑब्वियसली दे आर यूनिक टू दैट सिचुएशन, फेयर इनफ, उतना समझ में आता है. बट द पॉइंट इज दैट इफ यू रिटर्न दैट इज अवेलेबल, और मैं गया और वो अवेलेबल नहीं है, so then it is not fulfilling the basic service. Don't commit before you don't have it. So commit है, write it on the specials board. Today's special pumpkin latte. नीचे लिख दिया valid till stocks last. Meaning अगर गया और वो खत्म हो गया तो मेरी गलती नहीं. It's a disclaimer. पहले आ जाओ भाई, जल्दी आओ. Valid till offer valid till stocks last. ये तो आप लोगों ने बहुत सारी ads में देखा होगा, बहुत सारे discounts में देखा. Offer valid, packs are available without this offer also. पहले के manufactured अभी तक valid है. You would have both directions. So make it clear. Basics तो दो, basics तो दो. Syllabus है, class है, timetable है, teacher है, room है, AC है, projector है, खत्म. ये basic है. What will satisfy it? Maybe a normal classroom, जैसे typically हम लोग स्कूल में रहे होंगे. We had chalkboard होते थे, अभी भी है, ये रहा chalkboard. बट मेरे को चॉक बोर्ड से चिड़ है. आई वुड प्रेफर द वाइट बोर्ड. सो एज अ कस्टमर यू वुड हैव अ सेटिस्फाइड, चल यार एसी है, चल रहा है, और प्रोजेक्टर से पढ़ा रही है फैकल्टी, परफेक्ट. दैट्स अ सेटिस्फायर दैट मेक्स माई बेसिक सर्विस बेटर. क्लास में आए एंड इफ इट्स हॉट एंड ह्यूमिड, द सीट्स आर नॉट कंफर्टेबल, लाइक यार कैसे करूँ मैं, हाउ डू आई पे अटेंशन, आई एम डिस्ट्रैक्टेड बाय माई फिजिकल डिस्कम्फर्ट. आई एम जस्ट adding on to my service. So basic service is Maggi without masala. Maggi है, white noodle है, खाने का काम हो जाएगा, चलो मसाला भी डाल देते बेसिक में. Satisfier में क्या होगा? Maggi with some masala on it, Maggi with some veg आटा, better than normal Maggi, slightly better. Then you have the delight. So Maggi with freshly chopped and sauteed vegetables served in a bowl with a cold drink. That's your delight. Something extra than normal, something way more extra than normal. Right? That is where the challenge lies. So for example, in this one I had कि basic है, classroom है, satisfier है कि projector है, नहीं तो मैं लिख रहा होता बोर्ड पे बैठ के. It just makes your life easier if the projector is there. Makes my life also easier. मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ता. Right? Delight में क्या होगा? Something outside and something unexpected. Let's assume you are here and suddenly somebody comes up and distributes ice creams to everybody. चलो मौसम नहीं, चलो आइसक्रीम नहीं, कुछ और करते, चाय कर देते, चलो दिसंबर में कप ऑफ टी और अ कुकीज, पैकेट ऑफ कुकीज टू एवरीबडी, स्मॉल 2 पीसेज ऑफ कुकीज टू एवरीबडी. दैट इज अनएक्सपेक्टेड, बट किसी ने करा. दैट इज योर डिलाइट. कॉस्ट वाला पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे कम्स 2 क्वेश्चंस. कस्टमर सर्विस कंटिन्यूसली एस्केलेट, ये हम पहले भी टच अपॉन कर चुके हैं. आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ दैट. एंड व्हाट अबाउट कस्टमर डिलाइट? अब कस्टमर डिलाइट के साथ अब 2 क्वेश्चन है विच विल बी इन द नेक्स्ट स्लाइड. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. अच्छा, वो हम सेटिस्फैक्शन में करेंगे अभी, ठीक है. सो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ऑफ दिस होल थिंग. लाइक आई सेड, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट टू इट. कस्टमर डिलाइट का यही कॉस्ट है. What is the disadvantage of delighting the customer? Expectations escalate and cost adds on. और इसको हम ही build on करेंगे जब हम बाद में करेंगे. अभी हम we are sufficiently set for the basics of this portion. Let's move ahead. Then comes this thing called satisfiers and dissatisfiers. Satisfiers वो हैं, I'll give you a very simple explanation. Satisfiers वो हैं जो आपकी level of expectation और level of satisfaction को increase कर रहे हैं. So they are basically delights.
डिससैटिस्फायर्स आपके बेसिक्स. सो आप लेट से क्लास में आए, आपको दिखा अरे यार ये तो नया क्लासरूम है, इसमें वो पैडेड वाली बेंचेस हैं, ये नहीं टेबल्स नहीं है, ये लक्कड़ वाली नहीं है, वो पैडेड वाले बेंचेस हैं, फोम वाले बेंचेस हैं. डिलाइट, satisfier. But the question comes, does sitting on a foam bench or sitting on a wooden bench have an impact on your concentration and ability to learn? अगर टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहा, वो चाहे फोम का बेंच हो, चाहे स्लीपवेल का बेंच हो, चाहे स्लीप कंपनी का हो, जिस मर्जी का हो, it will not deliver the satisfaction. So what is happening is that when I give you a delight, by giving you a delight, your level of satisfaction increases. So a delight is a satisfier. But when I remove basic expectations, मैं टाइम से नहीं आया, आप लोग यहाँ पे 11:30 बजे आ गए, मैं 12 बजे अपना टहलता हुआ आ रहा हूँ क्लास में, हेलो एवरीबॉडी, आई एम हियर फॉर द क्लास. क्यों गालियाँ दोगे आप लोग मुझे गंदी वाली कि हम आधा घंटा यहाँ पे बैठे रहे और सडनली इसको हेलो एवरीबॉडी सूझ रहा है. ही शुड कमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल से आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट. Getting my point? So if I come late, I am the basic service. The faculty is there on time. Reasonably on time. 5-10 minutes कोई कुछ नहीं कहेगा. Everybody understands. Delhi traffic, everybody understands. 5-10 minutes, nobody will say anything. But if it's half an hour, like अब तो आजा. और अगर आ गया तो एटलीस्ट demonstrate that you are apologetic for being late. ये basic है. अगर मैं ये remove कर देता हूँ, then you become dissatisfied. By my being on time, you are not satisfied. Because all I'm doing is delivering the basic service. But my being late will create dissatisfaction. That is the concept of a satisfier and dissatisfier. And this dissatisfier is basically the big challenge with customer delight. जैसे ही मैंने customer को delight कर दिया, customer की expectation का level बढ़ चुका है. अब क्या होगा, अब मैं वो delight अगर remove करूँगा, मैं original product नहीं remove कर रहा हूँ. I'm not changing the hotel room. बट आई एम जस्ट रिमूविंग द केक. अगली बारी जब कस्टमर आएगा, यार मुझे केक नहीं मिला, आई एम डिससैटिस्फाइड. डिड यू रियलाइज, लुक आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट यू पेड फॉर. केक कहाँ लिखा हुआ था कि मैं आपको दूंगा? वो तो डिलाइट था ना. बट सडनली जब आप डिलाइट दे देते हो और उसको, जैसे ओला और उबर के साथ हुआ, आप लोग देखना, दोज ऑफ यू रिमेंबर ओला एंड उबर व्हेन दे स्टार्टेड, स्विगी जोमैटो, दे यूज्ड टू गिव अस ह्यूज डिस्काउंट्स. आज की डेट में देते हैं वो लोग डिस्काउंट हमें? तो हम कितनी बारी स्विगी से ऑर्डर करते हैं आजकल? कम हो गया ना हमारी फ्रीक्वेंसी. इफ द डिस्काउंट इज नॉट देयर, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज. सो क्या हुआ, डिस्काउंट दिया तो हम सेटिस्फाई हो गए, डिस्काउंट रिमूव कर दिया तो हम डिससैटिस्फाई हो गए. बट डिस्काउंट ने, डिड इट रिमूव द बेसिक सर्विस? नो इट डिडंट. राइट. सो दैट इज वेयर द कस्टमर. सो यहाँ पे देखना, दिस इज द लास्ट पार्ट. The customer feels deprived. मेरे को केक नहीं मिला, I am dissatisfied. मैं इनको 3 से ऊपर नहीं दूंगा 5 में से. That's how the reaction comes. Yeah. सर जैसे अभी आपने बताया कि हम डिलाइट में कस्टमर सर्विस में केक ऐड करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. दैट टाइम अगर वो कस्टमर हमारे पास दोबारा आता है डिफरेंट सिचुएशन में, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सेम सर्विसेज, दैट टाइम दे गिव give a Poor feedback. हाँ. तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन ये है, पहली बात कुछ मत दो कस्टमर को, बट दैट मे नॉट बी पॉसिबल. बट देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एजुकेट द कस्टमर दैट लुक वी आर सेलिब्रेटिंग अ स्पेशल एनिवर्सरी सर, हैप्पी एनिवर्सरी, ये रहा केक. बट अगर वो तब अब जैसे माई एनिवर्सरी इन जुलाई, आई कम इन सेप्टेम्बर. अब सेप्टेम्बर में तो नहीं मैं कह सकता ना कि मेरे को केक दो. सो यू डू, दिस इज कॉल्ड CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड डेटा बेसिंग. सो अब अगर ताज के पास में जाता हूँ, उनके पास मेरी एनिवर्सरी डेट फेड है, तो अगर मैं जून और अगस्त में बुकिंग करूँगा तो उनको होगा कि चलिए केक से शांत हो जाएगा. बट इफ आई कम इन सितंबर और अक्टूबर, लाइक नाउ इट्स टू फार अवे, वी हैव टू फिगर आउट समथिंग एल्स. सो CRM डेटाबेस, प्रेडिक्टिंग द कस्टमर्स नीड्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पहले भी कहा था ना, प्रेडिक्ट करने ना कस्टमर क्या चाहता है. प्रेडिक्टेड सर्विस का एक वो डायग्राम आया था ना आपका. सो यू चेंज इट, यू एजुकेट द कस्टमर दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग योर एनिवर्सरी का डेट, क्योंकि मुझे पता है नवंबर में मेरे से केक मत मांगना, जुलाई में मांगना. जुलाई में आपका बनता है, जून और अगस्त में आपका बनता है, क्योंकि यू आर नियर बाय, यू कुड बी कमिंग टू सेलिब्रेट दैट ओकेजन, बट नॉट अदरवाइज. सो यू ट्रेन द कस्टमर साइकोलॉजिकली.
एंड यू बिल्ड इन योर डेटा कि भाई कस्टमर को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. अब मेरे बच्चों का बर्थडे अक्टूबर में, सो इफ आई गो इन अक्टूबर टू सम रिजॉर्ट एंड दे नो वेयर माई चाइल्ड्स बर्थ डेट्स आर, तो उनको पता है कि मैं कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बच्चों के लिए. So maybe they give me a complimentary service, sir, your kids have a complimentary access to the kids play area for 2 hours every day. Different, not the same. But मेरे को complimentary कुछ ना कुछ चाहिए satisfaction के लिए. But you can change what is being offered in the complimentary part. ठीक है ना? So this is your, so वो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना, clear communication. Communicate clearly to the customer what is required. ठीक है? So what we'll do, अभी customer satisfaction नया topic start हो जाएगा. जिम वाला इसमें है, पहले दिखाऊं, जंप मार देते हैं, रुको, देन बुको इसकी सीक्वेंस में था, आई ब्रिंग इट हियर. ये देखो, सिमिलर एक्सपेक्टेशंस एंड सैटिस्फैक्शन गो हैंड इन हैंड. सो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जंप करूं, हम बाद में भी फिर से कवर कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू. सो इफ यू लुक एट दिस इज एन एग्जांपल, जजिंग सर्विस क्वालिटी. सो व्हेन आई लुक एट सर्विस क्वालिटी, इट हैज 2 पैरामीटर्स. वन इज इनसाइड द क्लब, मीनिंग दैट इज कंट्रोलेबल बाय whom? Me. So let's say I am late to class. Is it controllable by me? Yes. But if this projector decides not to be friends with this laptop, then not under control. So if you look at you look at SOL here. We have this classroom is under my control. But अगर आपको बाहर पार्किंग नहीं मिली, is that my problem? आपको मेट्रो से ई रिक्शा नहीं मिली, is that my problem? But अगर आपको रोज ये हो रहा है, then I should have. So in a gym for example, आपका जिम है, एक आपके घरों के पास भी होंगे, DDA की मॉल है, DDA का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसकी सीढ़ियाँ वहाँ से जहाँ पे पीछे टॉयलेट है. सो आप जिम तो अंदर से 5 स्टार है, बट रास्ते में आपको बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेज आ रही है. यू नो व्हाट आई मीन बाय अच्छी फ्रेग्रेंसेज. दैट विल स्पॉइल माई एक्सपीरियंस. That will spoil it. So though I may not be responsible, I may not have control over it, but I then have to figure out maybe मैं stairs की दूसरी side वाली stairs ना खुलवा लूँ. Maybe. So if you look at them, what is the availability of equipment, availability and working order? I don't know, मेरा जब जिम का experience दिखता ही आपको कि नहीं है, but whatever it is very small. And I remember when I used to go to my gym, वहाँ पे 3 ही treadmill थे उसके, और वो 3 ट्रेडमिल के पीछे हम सुखदेव ढाबा की तरह लाइन लगा के खड़े हैं, ये यूज करे तो मैं लगूं पीछे इसके. दैट टाइम हैपेंड, मे बी वो जिम क्राउडेड था, मे बी तब और जिम नहीं था. आई एम टॉकिंग 2007-2008, इतनी पुरानी बात करो, मैं तभी लास्ट जिम गया था, उसके बाद मैं भी नहीं गया. बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इफ यू गो देयर, लाइक इफ यू गो टू सुखदेव ढाबा इन मूर्थल जो है, वहाँ पे आप खा रहे हो, लोग घूर रहे हैं, जल्दी खा, हट ताकि मैं बैठूं, और वो बैठे तो उसके पीछे एक और फैमिली खड़ी है, जल्दी खा, हट, फिर हम बैठे. इट जस्ट स्पॉइल्स द एक्सपीरियंस. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट व्हेन यू गो टू अ जिम फॉर एग्जांपल, यू पेड मनी टू हैव इनफ एक्सरसाइज इक्विपमेंट. मैं ये नहीं कह रहा 500 ट्रेडमिल लगा दो, बट 3 की 6 तो करो, थोड़ा सा तो क्राउड कम करो. ऐसे होता है, टिकट काउंटर है, एक काउंटर खोला तो भीड़ हो जाएगी, 3 काउंटर खोल दो, भीड़ कम हो जाएगी, बच जाएगी भीड़. दैट्स माई पॉइंट. हाउ हाँ जी, could be. So maybe sensitize the customers. Peak hours में you may have to wait for 5 minutes for a machine to be free. Please cooperate with us. कुछ तो करो, communicate तो करो. ऐसे बैठे रहोगे तो customer will be dissatisfied. That's my point. So communicate. How responsive are the staff? How skilled they are? Facility maintenance, product quality, price of membership. ये सब मेरे कंट्रोल में. But something which are customers' emotional state. अब मेरे जैसा कस्टमर है, उसको बोला जाता है जाओ बेटा जिम जाओ, बिकॉज यू हैव टू लूज वेट फॉर अ मेडिकल चैलेंज. मैं ऐसे सिर लटका के जाऊंगा जिम में चाहे 5 स्टार होगा, मैं उसको फिर भी गालियां दूंगा. क्यों? मेरे को जिम से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को जिम जाने से प्रॉब्लम है. सो वो जो डिससेटिस्फैक्शन मेरी जिम जाने से है, दैट इज बीइंग पुल्ड ऑन टू द जिम. उसकी गलती नहीं है, बट वो स्टिल उसको गालियां पड़ रही हैं उस वजह से. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. आर यू प्रॉपर्ली ड्रेस्ड? Weather, experience in driving from, are your health goals being met? अब मैं जिम जाता हूँ, मेरे घर के पास में, I don't go, but for example I go to the gym, और उस जिम से नीचे उतरते हुए मैंने 1 घंटा वर्कआउट करा. जिम से नीचे उतरते हुए डोमिनोज है,
मैंने वहाँ जाके उसको बोला जी आई वॉन्ट वो पनीर टिक्का वाली गार्लिक ब्रेड स्टिक्स, और मैंने वो खा ली। और मैं नेक्स्ट डे वेट कर रहा हूँ, यार मैं तो पतला हुआ ही नहीं, जिम वालों की गलती है, ट्रेनर खराब है। ट्रेनर ने क्या करा, आप जाके डोमिनोज में गार्लिक ब्रेड खा कर, उसमें ट्रेनर क्या करेगा, राइट? सो दैट इज वेयर द सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी पार्ट कम्स। ठीक है, सो वील स्टॉप हियर, आई विल पिक अप सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो, थैंक यू। अटेंडेंस शीट मेरे को दे दीजिएगा प्लीज़।